नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पोस्ट ग्रेजुएट गुरु पे। और आज का टॉपिक आप देख ही सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पढ़ने वाले हम लोग। और आज और शायद कल हम लोग मोस्टली थियोरेटिकल पोर्शन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्निकलिटीज एंड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आगे जाके मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो आप लोगों को क्वेश्चन सही तरीके से आप सॉल्व कर पाओ, है ना। कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, पता रहे, क्वेश्चन तक गलत ना हो, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 13 जो है वो कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस रखता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। और आपके एसेट्स के क्या ग्रुप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, ये सब जनरल चीज़ें पढ़ेंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल रहने वाला है आज का टॉपिक, ठीक। बट इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जल्दी से 2 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड लीजिए, लाइक का बटन दबाइए। 1 सेकंड लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, ठीक है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आई होप आपने बेल आइकन दबा के ही रखा होगा एंड टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को जा रहा होगा। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। So first let us understand what is investments, right? Investments are assets that are held specifically for the purpose of earning dividend or interest income, right? So again, what is investment? Investments are assets held for the purpose of earning dividend or interest incomes, right? So again, as the topic is investment accounts, we are specifically talking about investments, and investments are somewhat let's say governed by accounting standard 13, which deals with investments, right? So accounting standard 13 has let's say specified some particular items that are not to be considered as investments, right? So let us come and take a look at that, right? So I'm going to write down a few items that are outside, or let's say as a exception to accounting standards 13, right? You can pause the video and screenshot it, or you can pause the video and write it down, all right? So exceptions to accounting standard 13, right? So first point is, say, interest, dividend and rentals earned on investment. Right. So interest, dividend and rentals are somewhat let's say out of the scope of accounting standard 13. But however, these are an essential part of investment because this is what we are aiming to earn, right? Interest, dividends and rentals. What is the second point? Second point is operating and financial leases and finance leases. Right. So operating and finance lease is again outside the scope of accounting standard 13 because there is a separate accounting standard which deals with all these things, right? Investment of retirement benefit plan, right? That is third point. Right, this is also again outside the scope of accounting standard 13. Mutual funds and assets held as stock in trade. Mutual funds and assets held as stock in trade, right? So these are some of the items that are outside the scope of accounting standard 13, right? Now अच्छा इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह कर लो या लिखना है पॉज करके लिख लो, ठीक है। मैं स्क्रीन से बाहर हूँ थोड़ी देर के लिए।
ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने। मैं इसको मिटा के आगे बढ़ने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए या इन जनरल भी अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन का, सो इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड और टू simple categories, right? You can say two broad or simple categories. Now what are those two categories? They are current and non-current investment, right? Current and non-current investment. So you have two types basically. Current investment and another is non-current investment. Now, what is current investment? Right? What is current investment? Current investments are the investments that are held is in the business for not more than 12 months or 1 year, right? So, what is current investments again? Assets held in the business for not more than 12 months or 1 year, right? So, basically these assets, current investments are assets that are more volatile in nature, right? Similar to current, like stock जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से, right? Stocks are also current investments. Current assets. So current investments are also coming under the category of current assets, right? Anything that is of short term is the value of any asset that is held for short term is more volatile. अब ये volatile मैं क्यों अभी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो क्या है इस चीज का टेन्योर क्या होगा? Held for less than 12 months/1 year. Now, what are non-current investments? Non-current investments are investments held in the business for more than a year, और आप 24 months या 36 months इस टाइप से आप माने टर्म वाइज अगर देखो तो उस हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो. ठीक है, बट इन जनरल यू कैन से दैट इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 year, राइट? So, how do we value current investments? जैसे आप यूं समझो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपने अगर जब पढ़ा होगा कि स्टॉक जो होता है, स्टॉक इन ट्रेड को कैसे वैल्यू करते हैं हम लोग? स्टॉक इन ट्रेड को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट? सो वी आर गोइंग टू यूज समथिंग सिमिलर फॉर वैल्यूइंग द करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, और इस टर्मिनोलॉजी अभी जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ी देर में. कॉस्ट और फेयर वैल्यू. कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो. ये आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कई बार सुनने मिलेगा, फेयर वैल्यू. ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. तो पहले मैं एक इसका बता देता हूं, नॉन करेंट एसेट का जो है आप किस तरीके से उसको वैल्यू किया जाएगा. दिस इज वैल्यूड एट कैरिंग वैल्यू, या कॉस्ट भी बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में. ठीक है, वैल्यूड एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट मतलब आपका बुक वैल्यू हो गया बेसिकली. ठीक है, इसको सिंपली आप कॉस्ट ही लिख लो ना. ठीक है, इसको कॉस्ट ही रखो, इतना अभी तामझाम करने की जरूरत नहीं है, चीजों को सिंपल रखो. ठीक है, कैरिड एट कॉस्ट, अभी के लिए उस हिसाब से समझ लो. अच्छा,
अब फेयर वैल्यू क्या है ना, थोड़ा सा समझो। फेयर वैल्यू क्या है थोड़ा सा समझो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है फेयर वैल्यू आपके लिए, ठीक है। ठीक है, सो फेयर वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू फॉर विच द एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड इन द मार्केट एट अ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं इस चीज को अभी लिखने वाला हूं, मैंने अभी जो जो चीज बोला, क्योंकि उसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी छुपा हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज फेयर वैल्यू? वैल्यू for which an asset that can be exchanged by knowledgeable and willing buyer and a seller at a, यहां से ध्यान रखना, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखो, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। तो फेयर वैल्यू क्या हुआ, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू फॉर विच एन एसेट दैट कैन बी एक्सचेंज्ड बाय अ नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर एंड अ नॉलेजेबल एंड विलिंग सेलर फॉर अ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन और एट अ आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस चीज को एकदम इज्जत से स्क्रीनशॉट करो, अभी जो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, एकदम स्क्रीनशॉट कर लो, पॉज करके लिखना है लिख लो, और इस चीज को जो मैंने अभी फेयर वैल्यू का जो ये 3 लाइन लिखा है इसको लिखो और आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर लो। ठीक है, अभी मैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होता है वो बताने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है ना, बहुत ध्यान से इस चीज को समझो, सुनो, क्योंकि आपका सिर्फ अकाउंट्स नहीं, ऑडिटिंग में भी ये टर्मिनोलॉजी आपको सुनाई देगा कभी कभी। ठीक, तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होता है समझो। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इज व्हेन अगेन a knowledgeable and willing buyer and seller come together to execute a business deal that is free from bias and based on self interest। इसमें काफी कुछ चीज है, ध्यान से मैंने जो बोला आई होप आपने सुना होगा। when knowledgeable and willing buyer and seller come together to execute a business dealing that is free from bias। bias मतलब कि कोई प्रेजुडिस एंड बायस जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कि कोई प्रेजुडिस एंड बायस इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, अनबायस तरीके से एक बिजनेस डील किया गया जहां पे बायर और सेलर दोनों ही अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंड द बिजनेस डीलिंग इज डन एट proper prevailing market rates, that is when we can say the transaction is done at a arm's length। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे।
ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखो। नॉलेजेबल बायर एंड सेलर होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस डीलिंग फ्री ऑफ बायसेस, ठीक है, फ्री ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस, एंड प्रायोरिटाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जो परचेजर है वो अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के डील कर रहा है, एंड जो सेलर है वो भी अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के सेल कर रहा है। उस चीज सिचुएशन को हम लोग कहेंगे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, और प्रॉपर मार्केट नॉलेज लेके किया जा रहा है ये चीज, ठीक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस द टर्मिनोलॉजी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करो या पॉज करके लिखना है लिख लो, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं अब। ठीक है, अभी आगे थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट का जो मैंने लिखा था ना, वहां पे एक चीज छूट गया था, ये चीज ध्यान में रख लो, मैं बोल दे रहा हूं कि नॉन करंट एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, बट इफ देयर इज एनी रीजनेबल रिडक्शन नोटिस्ड, reasonable and permanent reduction in the value of non-current that is noticed, then such reduction shall be shown in the value, right? ठीक है, अगर नॉन करंट एसेट को फ्यूचर में देखा जा रहा है कि हाँ उसमें परमानेंट रिडक्शन ऑफ वैल्यू हो सकता है, तो सच रिडक्शन को हम लोग रियलाइज करेंगे और शो करेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, आपका एक तरीके से वैल्यू, ये चीजें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैं ये जो चीज अभी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिकल जब एग्जाम ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये चीजें वैल्यूएशन का जो है मैंने अभी बोला, ये सब चीजें बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो एंड इसको अच्छे से लिख के रखो कहीं पर, ठीक है। फिर एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें दो छोटा छोटा चीज है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक। तो एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में ना दो ऐसा समझ लो, दो केस बन सकता है, ठीक है। दो मेजर केस बन सकता है। केस वन, ठीक, केस वन क्या है? इन्वेस्टमेंट परचेज के बदले तुमने सिक्योरिटीज इशू कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज करने के बदले तुमने सिक्योरिटीज दे दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर एक क्वेश्चन फिर ये अराइज होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या निकाले, फिर इन्वेस्टमेंट के बदले तो सिक्योरिटीज दे दिया, पैसे तो डायरेक्टली दिए नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सो द परचेज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट द सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू, ठीक है। जो सिक्योरिटी तुमने दिया, ठीक है, कुछ तुमने बॉन्ड कुछ हो, मान लो इन्वेस्टमेंट के बदले तुमने बॉन्ड दे दिया कुछ, तो बॉन्ड का जो फेयर वैल्यू होगा ना, वही इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बदले सिक्योरिटीज इशू किया था, इसका जो फेयर वैल्यू है वही इसका कॉस्ट बन जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप। तो दूसरे केस पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज के बदले में तुमने असेट्स इशू कर दिया अदर देन इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज,
सिक्योरिटीज के अलावा दूसरा कुछ एसेट दे दिया, प्लांट मशीन दे दिया, कुछ दे दिया उस तरीके से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज के बदले में एसेट दे दिया, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, राइट। जो एसेट दिया है उसका जो फेयर वैल्यू है वही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो उम्मीद करता हूं। इन्वेस्टमेंट के बदले में असेट्स अदर देन सिक्योरिटीज इशू किया गया, असेट का जो फेयर वैल्यू है वही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो स्क्रीनशॉट। तो भाई देखो, अभी करंट इन्वेस्टमेंट जब मैं समझा रहा था उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था वॉलेटाइल, ठीक है। मैंने बोला करंट इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होता है। अब वो क्यों वॉलेटाइल मैंने बोला उस चीज को समझो। अब देखो, कभी AS2 अगर आपने पढ़ा होगा ना, उसमें क्या होता है, हम लोग इन्वेंट्रीज को कैसे वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्रीज को बेसिकली वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये चीज क्यों किया जाता है, पहले ये चीज समझो। अगर ये चीज तुम समझ गए तो वहां पे क्यों हम लोग कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर बोल रहे हैं, वो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट और NRV इन्वेंट्रीज के केस में इसका लॉजिक ये है ना कि देखो, वॉलेटिलिटी एक ऐसा चीज होता है, मतलब कि समझो प्राइस या वैल्यू बोल लो, प्राइस तो नहीं वैल्यू बोल लो, वैल्यू ना ऊपर नीचे होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। उस केस में हम बोलते हैं द वैल्यू इज वॉलेटाइल, मतलब फास्ट चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज क्योंकि करंट एसेट है, हम लोग 1 साल से कम के लिए होल्ड कर रहे हैं उसको, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू उसका कम ज्यादा होता रहेगा ना। तो उस केस में हम लोग प्रॉपरली उस चीज को वैल्यू कैसे करें, एक रिलायबल वैल्यू कैसे निकालें, तो उस चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया कि उसको कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर हो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, हम उसको वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को। सो सिमिलर फैशन में ना, जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके केस में भी ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस काम करेगा, और हम ये कहेंगे कि प्रॉपर एक रिलायबल वैल्यू निकालने के लिए करंट इन्वेस्टमेंट का, उस करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या नेट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर हम लोग वैल्यू करेंगे, ताकि एक रिलायबल वैल्यू निकाला जा सके इन द केस ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा वॉलेटिलिटी क्या है, क्यों इस चीज को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट और फेयर वैल्यू इसलिए आ रहा है ताकि वॉलेटिलिटी को काउंटर किया जा सके और एक रिलायबल वैल्यू निकाला जा सके एसेट का, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्वेस्टमेंट में आगे चलो। इसमें आपका ना इन्वेस्टमेंट इनकम भी दो टाइप का होता है, ठीक है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है। तो क्या क्या होता है 2 टाइप में? पहला होता है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग का क्या मतलब है? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग मतलब है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करके देगा वो इन्वेस्टमेंट, और वो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड ही रहेगा हर साल। ऐसा नहीं कि पहले साल में आपको 2000 मिल रहा है, अगले साल में कम हो गया या ज्यादा हो गया, नहीं, वो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आपको फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देगा हर साल। मान लो 2000 2000 2000 या 10,000 10,000 10,000 इस तरीके से दे रहा है। अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग इनकम बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो हर साल आपको एक डिफरेंट सम ऑफ इनकम जनरेट करके दे, ठीक है, चेंज हो सकता है। अब फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होते हैं? आप बॉन्ड्स जो होते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, इन चीजों को फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज या फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आपने देखा होगा डिवेंचर्स के आगे सर्टेन परसेंटेज लगता है, 12% डिवेंचर्स या 13% डिवेंचर्स, 20% डिवेंचर्स। वो 13, 12, 20 ये सब क्या है? इट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम
दैट इज टू बी जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर डिवेंचर, और या फिर सिंपल भाषा में कह लो कि उस डिवेंचर के बदले में जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है वो कितना परसेंटेज आपको वापस लौटाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या फिर कितना परसेंटेज हर साल वो लौटा रहा है आपको। 12% मीन्स 12% इंटरेस्ट आपको जनरेट करके दे रहा है वो डिवेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बॉन्ड्स के केस में भी सिमिलर होता है, बॉन्ड्स का भी एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज आपको जनरेट होगा हर साल, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग इनकम आप बेरिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप ऐसा समझ लो, शेयर्स आर द बेस्ट एग्जांपल, राइट। शेयर्स जो होता है उसमें आप देखो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड शेयर्स के अगेंस्ट में। आपने मान लो 1000 शेयर्स परचेज कर रखा है, तो कंपनी ने बोला हम पर शेयर 2 रुपए करके डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये जो डिविडेंड का अमाउंट होता है ना, ये कभी फिक्स नहीं होगा, ये हर साल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लेट्स से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज जनरेटेड बाय द बिजनेस। हो सकता है आपको किसी साल में हो सकता है 5,000 का डिविडेंड मिला हो सकता है अगले साल जाके वो डबल हो जाए, 10,000 का मिल रहा है, फिर अगले साल पता चला कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ है, 2,000 फिर से डिविडेंड दे रहा है, 6,000 डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो इसको फ्लक्चुएटिंग इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या सिक्योरिटीज बोल सकते हो, ठीक। तो इसको थोड़ा और देखते हैं, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के केस में क्या क्या होता है, ठीक है। इसके अंडर में ना 2 कंडीशन बनता है, ठीक है, 2 मेजर कंडीशन बनता है। फ्लक्चुएटिंग में तो क्या है तुम्हारा, मतलब इसको तुम जो 2 कंडीशन है ना, इसको तुम फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में केस में मान के चलो, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन आता है एक्स राइट इंटरेस्ट, ठीक है, टर्म मैं लिख दे रहा हूं, एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्स राइट एक्स राइट इंटरेस्ट नहीं, आप नॉर्मल अभी के लिए एक्स राइट, ठीक है। एक्स राइट ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया आपका कम राइट। ये 2 टर्म ऐसा है ना, एकदम इज्जत से समझ लो, क्वेश्चन बनता है इसी इन सब चीजों का क्वेश्चन में रहेगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि मिस्टर एक्स परचेज्ड 10,000 फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज ऑन एक्स राइट बेसिस या कम राइट बेसिस। तो ये चीजें अगर आप इन 2 टर्म्स को ढंग से नहीं समझते हो, आप क्वेश्चन करते टाइम गलती करोगे, और वो एक जो गलती है वो करोगे ना, उससे पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा उस चीज से। तो इन 2 टर्मिनोलॉजी को ढंग से समझ लो, ठीक है। तो व्हाट इज एक्स राइट? एक्स राइट को आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, सिंपल हो जाएगा चीज। आप कभी किसी शॉप में, मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में गए, आपको एक एयर कंडीशनर खरीदना है। आपने शॉपकीपर को बोला भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, 1 टन या 1.5 टन का एसी चाहिए मेरे को, आप प्राइस कोट कीजिए कुछ। तो आपने कभी ध्यान देखो शॉपकीपर यूजुअली क्या बोलता है, हाँ 20,000 रुपए या 30,000 रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी या इंक्लूडिंग जीएसटी बोलेगा, ठीक है। अब वर्ड पे ध्यान दो, एक्सक्लूडिंग। अभी मैं एक्स राइट समझा रहा हूं, ठीक है, उस हिसाब से ध्यान दो वर्ड पे एक्सक्लूडिंग। अगर आपको शॉपकीपर बोले कि भाई एसी का प्राइस है 20,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब क्या उस पर अलग से जीएसटी चढ़ेगा ना। मैं जस्ट ये एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूं, अब इसको सिमिलैरिटी आप यहां पे रिलेट कर पाओगे। उसी तरीके से जब आप एक्स राइट इन्वेस्टमेंट खरीदते हो ना, उसमें आपका जो प्राइस है सिक्योरिटी का, जो प्राइस है सिक्योरिटी का, that does not include interest on such security। आपने कोई एक्स राइट बेसिस पे सिक्योरिटीज खरीदा, उसके प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब अलग से इंटरेस्ट चढ़ेगा उसके ऊपर।
समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एक्स राइट बेसिस। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एक्स राइट बेसिस। जब प्राइस के ऊपर अलग से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है इंटरेस्ट, तब बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट। उस हिसाब से जब कम राइट हुआ वो क्या होगा कि व्हेन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डज इंक्लूड, ध्यान रहे, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डज इंक्लूड द इंटरेस्ट। मतलब कम राइट बेसिस पे जहां आपने सिक्योरिटीज परचेज किया उसके प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो आपको यहां पे दो चीज सेपरेट करना पड़ेगा कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है, उसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक, इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे, कम राइट बेसिस एंड एक्स राइट बेसिस को। स्क्रीन से हट रहा हूं मैं, जल्दी से इसको करो स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिखना हो लिख लो। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा वो भी बता दे रहा हूं मैं। तो आइदर ऑफ द केस कम राइट हो या एक्स राइट हो, जर्नल एंट्री ध्यान दो, दोनों केस में ही सेम पास होगा। ठीक, दोनों केस में ही सेम पास होगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे, परचेस कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट असेट बढ़ रहा है इसीलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट। इंटरेस्ट अक्रूड डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड डेबिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना तुमको। भाई तुमने तो सामने वाले से असेट ले लिया, उसके पास असेट रहता, अगर उसके पास जिससे तुमने खरीदा अगर उसके पास असेट रहता, उसको कुछ इंटरेस्ट प्राप्त होता, कुछ इंटरेस्ट का लाभ होता, तो वो तुमको जो सिक्योरिटीज है बेचते टाइम ये बोलेगा ना, भाई मुझे तो इंटरेस्ट मिलने वाला था, मैंने तुमको अगर ये असेट दे दिया या ये सिक्योरिटीज दे दिया तो मुझको तो इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा ना। तुम ऐसा करो, तुम मुझे उतना इंटरेस्ट दे दो जितना मुझे मिलने वाला था, ये तो तुमको देना पड़ेगा ना भाई। तुमने सामने से अगर उसका असेट तो खरीद लिया, बट उसके अगेंस्ट में उसको जो इंटरेस्ट मिलना था वो थोड़ी ना बैठ के नुकसान झेलेगा अपना, तो तुमको इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट करोगे टू बैंक, पे कर रहे हो बैंक कैश, जैसे पे करोगे वैसा क्रेडिट कर लेना। ठीक है, अब ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों के केस में सेम ही होगा। ठीक है, अब कम इंटरेस्ट में तो क्या चक्कर है कि तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है उसके साथ इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट टू बैंक करके डायरेक्ट टोटल अमाउंट चिपका दिया, नहीं, वैसे नहीं होगा। प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना, अकाउंट्स बना रहे हो, यूजर ऑफ अकाउंट्स के लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर तुमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो वैल्यू है कम राइट बेसिस जो है, कम राइट बेसिस में जो है तुम्हारे कॉस्ट में इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड है, तुमको इंटरेस्ट अलग से दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको अलग से दिखाना पड़ेगा, और टू बैंक कैश करके तुम टोटल अमाउंट लास्ट में लिखोगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल आगे जाके पढ़ेंगे शेयर्स जो कि फ्लक्चुएटिंग इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है उसका हम लोग
एक तरीके से बोलिए किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके डिविडेंड्स वगैरह का, ठीक है, राइट शेयर्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम लोग कल यानी कि अगले क्लास में देखेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा एक, ठीक है। तो आई होप आज मैंने जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जम के डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।